Welcome back to the channel, guys. This is Dr. Dexter here, and today we are back with another interview. And today we have Dr. Sagar with us, and he will be sharing his journey, his preparation, his tips and tricks for the upcoming FMG aspirants. And we will be hearing what he has to say. So, first of all, Dr. Sagar, so many congratulations to you for clearing this exam. Thank you. So, please introduce yourself to the audience. So myself, Dr. Sagar, I have done my MBBS from Premium Federal University, and I have cleared my FMG with 193 marks in my first attempt. Fabulous score, Dr. Sagar. And to the audience, I want to tell you that he was my group mate and he was also my roommate for some time. So I kind of know how we prepared together. So first question is, how are you feeling? I know it's been 10 days after the result. This interview is after a very long time, but still, I think that feeling is still there inside you. So how are you feeling? I think अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि लाइक कुछ हो गया, बस पता नहीं चल रहा कि हाँ जब तक मेरा पासिंग सर्टिफिकेट नहीं आया तो मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था। जिस दिन रिजल्ट आया था, इवन लाइक दैट डे माय जूनियर कॉल्ड मी, सो आई वाज जस्ट सिटिंग ऑन माय बेड, फोन वाज ऑन चार्जिंग, बस मैं बैठा हुआ था तो ध्यान नहीं मेरे को कुछ। तो जूनियर का कॉल आया था, तो ही आस्क्ड मी कि भैया क्या हुआ, पास हुए कि नहीं हुए। मैंने कहा, क्या रिजल्ट आ गया? फिर हमने देखा, फिर मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। मेरा छोटा भाई दूसरे रूम में बैठा था, तो मैं उसके पास गया और उससे कंफर्म करवाया 2-3 बार कि हाँ पास हुआ, नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। भाई उस दिन पता नहीं, लाइक दैट डे कुछ नींद वगैरह भी नहीं आ रही थी। सेम 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 मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। सो रिजल्ट जब पता लगा कि रिजल्ट आ गया हम्म, और रिजल्ट पता लगने के बाद कि हाँ मैं पास हुई या फेल, क्या फीलिंग थी? वही मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि रिजल्ट आ गया। पहले मैं ये कंफर्म कर रहा था कि सच में असली रिजल्ट है कि नहीं है। फिर मैंने वो मैच किया, रोल नंबर मैच किया, वो मैच किया, फिर मुझे बिलीव नहीं हो रहा बार बार। फिर मैंने अपने भाई को बोला, फिर मैंने तुम्हें भी मैसेज किया था कि हाँ तुम्हारा 11 का रिजल्ट है नहीं है, असली है कि नकली है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यार। कोई नहीं, अब तो पास हो गया, डॉक्टर बन गया। So let's talk about the strategy he used and how he prepared using different resources, what resources he used. So first question is, when did you start preparing for FMG? Like, so for the first time, when did it come to your mind that I have to start now? आई थिंक माइंड में तो बहुत बार आया, बट आई स्टार्टेड इन लाइक एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर एंड स्टार्टिंग ऑफ द सिक्स्थ ईयर, लाइक इन द समर वेकेशन आई टुक cerebellum. So I started with pharma. So I started from that point only. Like for 2 months I did pharma, then I did physio. Then after here, then in sixth year I did surgery. Then I did medicine, half medicine. Then you also know we got very busy in that graduation and all things. तो उस टाइम तो बिल्कुल पढ़ाई हुई नहीं थी। आई स्टिल रिमेम्बर कि हम टॉपिक्स पढ़ते थे और क्वेश्चन पूछते थे एक दूसरे से, हाँ कितना बस पढ़ा, क्या उसी पढ़ा, टाइम पढ़ाई हुई थी। तेरे रिसोर्स में, तुम्हारे रिसोर्स में क्या है, मेरे रिसोर्स में क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, क्या नहीं है। Okay, so you started in the end of fifth year, right? Yeah, Okay, and you used cerebellum as your main resource. at that time I used cerebellum. Okay, and after that, After that, after coming to India, I took missed because I have not done any like main subjects, too many subjects, so I took missed. So आखिरी में मैंने उन्हीं से प्रिपेयर किया था, but for few subjects I repeated from that subject on from cerebellum only. okay. So India आने से पहले कितने सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो चुके थे, लाइक फ्रॉम मेन वीडियोस और रिवीजन वीडियोस? I would say like 4 5 like completely I did with questions, few questions, not completely, but like few questions. Also like pharma, physio, then patho half I did because I got like bored with patho, so I left that. Mhm. So I started then surgery and obs gynae and half of the medicine only. Like two Okay, topics only for that university exam I did. okay. So before coming to India, you did five important subjects. Yeah, Okay. So after coming to India, like for the last 6 months, after in August we came, right? yeah. From August till December or November, the date was announced. Mm. In that, like when you came to India, what was your strategy? So I took coaching from India. तो उन्होंने प्लान दे रखा था। I was just doing the classes and repeating. The main thing is that I was repeating every day. Whatever I taught in class, I was repeating same day before sleeping and doing like few questions, 40 questions, 50 questions only. Okay, so revision and questions, doing questions daily.
डेली। was okay. So consistency was there. Okay, so like दिन में कितना घंटा क्लास होती थी, कितना घंटा सेल्फ स्टडी को मिलता था? क्लासेस तो वाज अराउंड लाइक 10 to 12 hours. So after that I used to take 1 or 2 hour break, like sit with family, eat, और ऐसे ही बैठा रहा बस, कुछ सोचने हम्म। बस लेटा रहा ऐसे ही। और फिर उसके बाद 3 घंटे 2.5 घंटे हाँ लग जाते थे रिवीजन में। फिर वही नींद आ रही होती थी तो उसी में मैं क्वेश्चन करता था 30-40 मिनट्स के लिए। फिर मैं सो के फिर वही सेम थिंग रिपीट एवरीडे, यही चल रहा था। Okay, so in the last 2 months, when it was high time for the revision, or we can say that when the date was announced, in that time period, what change did you bring in your strategy? फर्स्ट थिंग आई डिड लाइक, पहले मैंने वही किया कि जो मुझे था कि हाँ ये सब्जेक्ट वीक है, तो मैंने वही किया। जैसे मेरा मुझे था कि फार्मा के मुझको इतनी जल्दी याद नहीं रहता था, तो आई वॉज रिपीटिंग दैट। देन उसके बाद पीएसएम का मैं रिपीट रिपीट कर रहा था बार बार। तो मेन थिंग तो ये कि दो लास्ट के 2 मंथ में मैंने वही किया कि जो पढ़ रहा था मैं वही सिर्फ वही रिवाइज किया, मैंने कुछ नया ऐड नहीं किया, कुछ न्यू ऐड नहीं किया, जैसे कि कोई न्यू सोर्सेस या कोई न्यू टॉपिक ऐड नहीं किया। सिर्फ वही रिपीट कर रहा था और पीवाईक्यू करने मैंने कम्प्लीटली स्टार्ट कर दिया कि हाँ 2 घंटे के लिए मैं दिन में 2 से 2.5 घंटे के लिए पीवाईक्यू करूंगा ही करूंगा। तो या और कोई कभी कभार पीवी का ये पीवाईक्यू, कभी कभार मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब किसी ऐप से कर लेता था। तो बस वही कर रहा था, मेन यही था कि रिपीट रिपीट कर रहा था, रिवाइज कर रहा था, वही रिपीट, फिर वही क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करो, फिर उसकी वो देखो क्या एक्सप्लेनेशन क्या है। So out of the 19 subjects, कोई ऐसा सब्जेक्ट था, एक था या दो था या तीन थे, जो बिल्कुल ही छोड़ दिए गए हो कि नहीं मुझे मेरे से नहीं हो रहा तो मैं नहीं कर रहा इसको? बिल्कुल तो नहीं, बट आई वुड से लाइक 80% मैंने होप छोड़ दी थी उस सब्जेक्ट से, बायोकेमिस्ट्री। मैंने 80% होप छोड़ दी थी कि हाँ किससे क्वेश्चन आया तो मे बी आई विल डू, मे बी आई विल नॉट डू, लाइक मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट करता ही नहीं हूँ इस पे। तो आई डिड लाइक ओनली फ्रॉम दैट विटामिन एंड लाइक फ्यू क्वेश्चन ओनली इलेक्ट्रिक, जो कि आए नहीं एग्जाम में, उनमें से कुछ आए नहीं एग्जाम में जो भी मैंने पढ़ा था। हम्म। तो बायोकेमिस्ट्री में से ऐसी था टाइम पास, मतलब कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं था उस वाले सब्जेक्ट में मेरा। बाकी मैंने कर लिए थे, हाँ बाकी अच्छे से हो गए थे। Okay, so what do you feel about your journey? Like your 6 months when you were preparing, how हम्म। was it? यही था कि देखो, फर्स्ट डे यू विल स्टार्ट लाइक पढ़ता हूँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे 2 मंथ के बाद 3 मंथ के बाद व्हेन यू स्टार्ट डूइंग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और लाइक पीवाईक्यूज, देन यू थिंक कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा। फिर वही हुआ कि मैंने 1-2 दिन ब्रेक लिया, मतलब पढ़ क्लासेस अटेंड की बट मैंने रिवीजन वीजन पे इतना ध्यान नहीं दिया, फिर ब्रेक लिया पूरा। फिर हाँ दोबारा से स्टार्ट किया। फिर आखिरी में आते आते वही हो गया था कि पता नहीं होगा नहीं होगा। तो उस टाइम वही डाउट आ रहा था कि मैं अगर नहीं हुआ तो फिर तो भी पढ़ना है, अगर हो हम्म। गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी पढ़ना है। तो इससे अच्छा है कि जब तक एग्जाम है हाँ कि मैं पढ़ लेता हूँ, जितना पढ़ सकता हूँ पढ़ लेता हूँ, बाकी देखा जाएगा। बाकी मैंने छोड़ दिया था कि हाँ होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, देख लेंगे, बट अभी जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लेता हूँ। फाइन। सो अब बात करते हैं ग्रैंड टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट की। तो कितने ग्रैंड टेस्ट दिए, सब्जेक्ट टेस्ट कितने ग्रैंड टेस्ट दिए, और क्या इंपॉर्टेंस लगी उन ग्रैंड टेस्ट की? ग्रैंड टेस्ट मैंने दिए थे, मैरो का भी दिया था और मैंने जो कोचिंग की थी उसका भी दिया था। तो ग्रैंड टेस्ट आई वुड से मतलब देना चाहिए, बट ये कि उस पर पूरा डिपेंड नहीं हो जाने का, क्योंकि क्योंकि ऐसे होता है कि बहुत बार होता है हमारे मार्क्स हमारे होते हैं। मेरे मैरो में अराउंड 170 आए थे, मैंने जब दिया था वो वाला। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इनफ नहीं होगा, इससे तो नहीं होगा, मैं इस बार नहीं होऊंगा पास। फिर मैंने अपनी कोचिंग का दिया तो उसमें अच्छा आ रहा था। फिर ये उसमें भी है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो मैं आई वुड से कि मतलब दो, उससे मुझे पता चल रहा था कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट मेरे भी क्लियर है अच्छे से, कौन सा नहीं है। तो आखिरी में वही है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करा, दो अच्छे का हो गया, अक्षर जा रहा है ठीक है, बस पार्ट एज ए पार्ट रखो कि उसे अपन रिवाइज करते रहो रिवाइज करते रहो, बस यही करना है। तो शॉर्ट में रिवीजन, कंसिस्टेंसी, और हम्म। अगर डीमोटिवेट हो रहे हो तो टेक अ ब्रेक और फिर दोबारा स्टार्ट करो। हाँ बस राइट। करते रहना है, बस वही है कि डोंट वेट कि यहाँ की कुछ होगा तब मैं पढ़ूंगा, बस पढ़ो हो जाएगा अपने आप हो जाएगा। अगर नहीं भी हो रहा होगा तो भाई हो जाएगा आखिरी में आके। तुम रिजल्ट को तुम खुद डिसाइड नहीं करोगे, बस वही है कि खुद पढ़ लिया तुमने जितना पढ़ लिया, सबसे ज्यादा लेके वही जाना तुम्हें बस। आखिरी में वही जो काम आएगा, अगर दोबारा भी तुम दोबारा रिपीट भी करोगे, बाई चांस अगर तुम्हारा नहीं होता तुम रिपीट करोगे, तुम एटलीस्ट तुम्हारे पास बेसिस क्लियर रहेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ रखा था, बेसिक्स वगैरह मेरे इतने अच्छे हैं। तो इस वजह से ये पढ़ते रहो, ये मत सोचो कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो देखा जाएगा आखिरी की बात वो। सो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे इस बार थोड़ा एग्जाम अनएक्सपेक्टेड आ गया था,
कुछ टॉपिक्स, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स नहीं आए बहुत। थे पुराने। हाँ। ठीक है, तो आई वुड लाइक यू टू टेल अस अबाउट एक्सपीरियंस इन द एग्जाम हॉल। मैं तो गया था फर्स्ट, मेरा जो फर्स्ट एग्जाम था, तो मैं दे रहा था फर्स्ट, आई गेस फर्स्ट सेक्शन वाज क्वाइट गुड, लाइक ठीक था, अच्छा था, उसमें अच्छे क्वेश्चंस आ रहे थे। बट आफ्टर टेंथ आई वाज जस्ट डूइंग, देख रहा था, मैं पढ़ रहा था, और मैं मार्क कर रहा था आंसर कि हाँ इसका ये आंसर है, ये लगा देता हूँ, इसका ये आंसर ये लगा देता हूँ, इसका आंसर ये हो सकता है तो वो लगा देता हूँ, या फिर तुक्का लगा के मैं बस क्लिकिंग और सीइंग बस कर रहा था ऐसे में। आखिरी में जब मैंने सबमिट किया ना, तो मैं कंप्लीटली ब्लैंक था, मुझे नहीं पता कि, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरे कैसा गया, मैं कैसा, अगर कोई पूछेगा तो मैं कैसे बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन सही गए, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस वाले में, फर्स्ट वाले में। तो पूरे मैं लगा लो 2.5 घंटे तक ब्लैंक ही रहा था मैं। पापा ने पूछा, तो मैं बाहर खड़ा था, पापा बाहर खड़े थे, तो उन्होंने पूछा कि कैसा गया, तो मैंने वही बोला कि आइडिया नहीं, ये वाला कैसा गया, बस लग रहा है मुझे ठीक गया है। मैं तुम्हारे, तुमसे भी बात हुई थी मेरी बाद में, तो मैंने भी यही कहा था कि फर्स्ट एग्जाम का कोई पता नहीं, मुझे लग रहा है बस कि उसमें अच्छा हो गया तो मुझे लगता है कि हाँ अच्छा होगा। फिर मैंने, इसलिए फिर मैंने, मतलब ये अच्छी बात थी कि मैंने उस टाइम उतना सोचा नहीं फर्स्ट वाले पेपर के कि हाँ बेकार गया या अच्छा गया है। तो फायदा हुआ उसी ना सोचने की वजह से, मुझे सेकंड पेपर बहुत अच्छा गया था, उसी वजह से कि हाँ उसमें मैं अच्छे से फोकस भी कर पा रहा था, मुझे पता चल रहा था कि हाँ लास्ट सेक्शन में मेरे इतने क्वेश्चन मैंने अच्छे से कर दिए थे, इतने मेरे मिस हुए थे, और इतने मैंने गैस करके लगाए हैं। तो सेकंड पेपर में वो फायदा हुआ कि मैंने फर्स्ट पेपर को लाइक सोचा नहीं। और ये था कि हाँ बहुत सारे टॉपिक्स तो ऐसे थे कि आइडिया नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था, बहुत से सब्जेक्ट पढ़ नहीं रखे थे कि मैंने डीप लेवल में पढ़े थे, मैंने कोचिंग से पढ़ा था। तो कोचिंग में जितना पढ़ाया था उससे हाथ में से लग रहा था कि हाँ यार पढ़ा नहीं पढ़ा, डाउट हो रहा था, टिक करते हुए भी इवन डाउट हो रहा था कि पढ़ा नहीं पढ़ा। तो एकदम ऐसा पेपर आया था कि भाई, कि लग रहा था कि कुछ नया उन्होंने लगा लो पैटर्न ही चेंज कर दिया इस बार। सेम फीलिंग मुझे भी आ रही थी, बट योर हार्ड वर्क और किस्मत, भरोसा अपने ऊपर, डेडिकेशन, जो भी सब चीजें दुआएं थी, यू गॉट अ गुड स्कोर, यू पास्ड। बिफोर एंडिंग, कुछ चीजें जो हमारे जूनियर्स हैं, एफएमजी एस्पायरेंट्स है, जो भी एग्जाम देंगे, सिक्स ईयर वाले जो हैं, सिक्स ईयर में हैं, कुछ फिफ्थ ईयर में है, कुछ फोर्थ ईयर में है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि जब मैंने स्टार्ट की थी तो सीनियर्स बोलते थे कि नहीं, 6 महीने काफी होते हैं, या फिर सिक्स ईयर में स्टार्ट करना, अभी से क्यों, अभी तो घूम लो, ये कर लो। सो इस एग्जाम के बाद, या फिर जो पैटर्न चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, व्हाट डू यू थिंक कि एक स्टूडेंट को, एक एफएमजी ई एस्पायरेंट को कब स्टार्ट करना चाहिए? मैं तो कहूँगा जितना जल्दी हो उतना अच्छा स्टार्ट कर ले। और सबसे अच्छा है, पहले हम ये सोच के चलते थे कि वेटेज वाइज कर लेते हैं टॉप सब्जेक्ट्स को, कि हाँ बड़े सब्जेक्ट्स है उसे निकल लेते हैं, 150 का हो जाएगा, घर जाके फिर हम रिवाइज कर लेंगे और कुछ सब्जेक्ट्स कर लेंगे तो पास हो जाएगा। बट अब लगता नहीं है वैसा, मतलब उस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि अब कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि इंटीग्रेटेड आ रहे हैं। मतलब पहले ऐसा था ना कि वो कुछ सब्जेक्ट्स को फिक्स कर रखा था उन्होंने कि वो फर्स्ट पेपर में ही पूछेंगे। बट अब की इस बार ऐसे आया था कि मिक्सअप आया था, कुछ क्वेश्चन इधर आए, कुछ अच्छे क्वेश्चन इधर आए, इंटीग्रेटेड आए थे। तो इससे सबसे अच्छा ये है कि अभी से स्टार्ट कर देते हो, कर दो तो बढ़िया रहेगा। और मेन ये है, इंटीग्रेट करके पढ़ो। ऐसे मत सोचो कि इस सब्जेक्ट का वेटेज 17 नंबर है या 13 नंबर है, 15 नंबर है, उस हिसाब से मत देखो। अब तुम्हें ऐसे देखना पड़ेगा कि 90 सब्जेक्ट आ रहे हैं, वो एक साथ ही आएंगे, उनमें से कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी इंटीग्रेट करके वो दे देंगे, पूछ लेंगे। तो उस हिसाब से स्टार्ट कर दो। और सबसे सबसे पहले भाई ये बेसिक्स क्लियर करना है। बेसिक स्टार्ट किए, फिर उसके बाद धीरे 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 बिल्ड किया। और कोई टाइम नहीं है कि हाँ मैं सिक्स ईयर में जाके स्टार्ट करूंगा या फोर्थ ईयर में जाके स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर इवॉल्व हो रहा है ना, फिर आखिरी में जाके फिर वो टाइम नहीं रहता। हमने भी, मतलब मैंने भी लेट स्टार्ट किया था, और आखिरी में जाके लग रहा था कि हाँ अगर मैं पहले स्टार्ट कर लेता तो मुझे इतना वो दिक्कत नहीं होती। अगर मैं अभी पहले स्टार्ट कर लेता तो अभी मैं रिवीजन कर रहा होता और पीवाईक्यूज कर रहा होता, उसी से मेरा हो जाता। बट आखिरी 6 मंथ में फिर वो ओवरलोड हो जाता है, और उस टाइम फिर हैंडल करना भी अच्छी बात है। कभी कभार वो होता है कि प्रेशर में ज़्यादा कुछ नई स्किल्स डेवलप हो जाती है, बट नहीं, उससे अच्छा है कि पहले से तैयारी करके रखो, बाद में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। रिस्क लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, राइट। रिस्क नहीं लेना चाहिए। सो अभी जो सिक्स ईयर में स्टूडेंट्स हैं, जो हम्म। भी इंडिया आएंगे 5-6 महीने बाद जुलाई में, वो कौन से मेन सब्जेक्ट्स है जो उनको वहां से करके ही आना चाहिए? मेन सब्जेक्ट्स में, मेन सब्जेक्ट मतलब वही है कि बेटिस के हिसाब से ना हो। पहले की बेसिक्स क्लियर कर लो, फिजियो, पैथो, फार्मा अगर तुम कर सकते हो, हाँ फार्मा तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा टाइम तक रिमेम्बर कर लोगे, रिवाइज रिवीजन भी कर लोगे। फिर उसके बाद ये जैसे क्लियर हो गया है, तो उसके बाद तुम फिर सब्जेक्ट्स उठाओ, कि सर्जरी उठा ली, ऑब्स गैनी उठा ली, मेडिसिन अगर लगता है कि हाँ यू कैन डू लाइक दैट मच, फिर कर लो।
फिर माइक्रो होगी, माइक्रो कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट लाइक, हाँ बेसिक, फर्स्ट बेसिक्स क्लियर कर लो, फिर उसके बाद कोई बड़े सब्जेक्ट उठा लो। बस ये रहेगा कि बाद में तुम्हारी दिक्कत नहीं होगी। राइट राइट। हाँ। सो वन मोर क्वेश्चन, और हम्म। इसके बाद पक्का मेंट कर देंगे। मुझे वो फीलिंग जाननी है जब आपने डिसीजन लिया था कि मुझे अब्रॉड जाना है पढ़ने, और अभी जो फीलिंग आ रही है कि हाँ मैंने सही किया और मेरा जो डिसीजन था मैं उसको रिग्रेट नहीं करता हूँ। क्या फीलिंग थी जब जा रहे थे और अभी? जब जा रहे थे तो मेरा तो मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं फर्स्ट टाइम मतलब घर से बाहर रहने जा रहा था। तो मैं उससे पहले कभी बाहर नहीं रहा था, मैं हमेशा घर पे रहा था। पढ़ाई वगैरह, स्कूलिंग वगैरह, कोचिंग वगैरह जो भी की थी मैंने घर से की थी। तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था, ऑफ कोर्स तो डरा तो था। बट मेरे एक भैया भी थे जान पहचान के, रोहित भैया थे वो भी। तो वो भी सिक्स ईयर में, तो उनकी वजह से था कि हाँ थोड़ा वैसा वैसा था कि नहीं लगेगा वहाँ पे, हाँ हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में गया तो वही है, फर्स्ट ईयर तो मैं सोच रहा था कि क्यों आ गया, फायदा होगा नहीं होगा यहाँ पे। तो हाँ, बट ये कहूँगा फायदा है। ये मत सोचो कोई तुम्हें बोलता है कि बाहर जान दो, बाहर जाओगे फिर वापस आओगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तुम छः छः साल में मेहनत करो, अपने कॉलेजेस की क्लासेस करो, पढ़ो उसे क्लासेस में जो भी पढ़ाते हैं अपना, और साइड में प्रिपेयर करते रहो, क्लियर भी हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, मे भी और अच्छे मार्क्स भी हो। तो एंड वर्थ, वर्थ ऑफ कोर्स वर्थ है। तुम यार एक मतलब एक डॉक्टर का टाइटल लग रहा है तुम्हारे आगे। जब भी जैसे ही तुम एग्जाम क्लियर करोगे वैसे ही सब तुम्हें डॉक्टर डॉक्टर करके ही बुलाएंगे। पहले भी बुलाते थे, अब तो एकदम तुम्हारा हो जाता है परमानेंट। तो ऑफ कोर्स वर्थ तो है। ओके, सो अभी जो नीट यूजी के बच्चे हैं जो एग्जाम देंगे, सो क्या आप एडवाइस देंगे कि क्या अगर उनका जैसे फर्स्ट ईयर ड्रॉप करके फिर नहीं हो रहा है, या सेकंड ईयर ड्रॉप कर रहे हैं, थर्ड ईयर ड्रॉप कर रहे हैं, क्या एक ऑप्शन ले लेना चाहिए कि वो बाहर आके पढ़ लें अपनी मेडिसिन, अगर उनको उनके अंदर एम्बिशन है कि हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है? सो विल इट बी अ गुड ऑप्शन टू कम अब्रॉड एंड स्टडी? आई वुड से कि हाँ मतलब वर्थ भी है, अच्छा ऑप्शन भी है, फाइनेंशियली भी अच्छा है। यू, और सबसे अच्छी बात है कि पढ़ाई के साथ तुम्हें कुछ और मतलब और कुछ चीज़ें भी डेवलप कर सकते हो। फर्स्ट तो तुम लाइक इंडिविजुअल लेवल पे डेवलप हो जाओगे, तुम्हें इंडिपेंडेंट हो जाओगे, कुछ अच्छे से सीख जाओगे कि खुद को कैसे हैंडल करना है, किसी भी सिचुएशन में क्या करना होता है वो अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें जब बाहर होगे। और रहा कि तुम देखो बार बार ड्रॉप लोगे, वही होता है कि आफ्टर सम ड्रॉप यू हैव टू टेक सम डिसीजन, कि एक ये नहीं तुम कंटिन्यू कर सकते। तुम्हें सबको पता रहता है कि हाँ इसके बाद मैं अब नहीं कर पाऊंगा कंटिन्यू। तो हाँ, मेन ये रहता है कि मेन आई गेस कि बहुत लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि एक रहता है कि फ्रॉड का रहता है लोगों को, कि हम बाहर जाए किसी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं हो, या फिर वो अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ा रहे हो, तो हम क्या ही पढ़ेंगे, वो उस नाम की डिग्री डिग्री रहेगी। तो वही है कि जाने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लो। कोई तुम्हें बताता है कि हाँ यूनिवर्सिटी ये है ये है, एक बार खुद भी सर्च कर लो। बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इंडियन, और मैनी ऑफ देम मेक ब्लॉग्स ऑन यूट्यूब, और मतलब डाटा बहुत कुछ अवेलेबल है, तुम सर रिसर्च कर सकते हो। सबसे अच्छा वही है कि रिसर्च कर लो खुद, कॉलेज चूज कर लो, देन अप्रोच समवन कि हाँ कि मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है, ये कॉलेज कैसा है। तो उसके बाद तुम्हें एक रहेगा कि डर भी चला जाएगा, और तुम्हें पहले से पता रहेगी बहुत सारी चीज़ें। हमारे टाइम नहीं था उतना ऑनलाइन, तो हम तो वैसे ही गए थे कि हाँ जान पहचान के थ्रू गए थे कि हाँ उस हिसाब से भरोसा तुम्हारा। बट अब तो बहुत कुछ ऑनलाइन है, तो तुम पहले रिसर्च करके तब जा सकते हो। तो ऑल इन ऑल बात यह है कि अगर एक बच्चा बाहर जाता है तो उसको एक ओवरऑल डेवलपमेंट मिलता है विद एकेडमिक्स, अ पर्सनल ग्रोथ। आई रिमेम्बर कि जब हम खाना बनाते थे फर्स्ट ईयर में, जब हम आए थे तो हमसे, हम रोटी बना रहे हैं, तुमसे रोटी नहीं बन रही, और कुछ आज नहीं आता तो आज हम इस कंडीशन पे कि आप हमें कुछ भी सब्जी दे दो हम उसको बना लेंगे। पूड़ी बना लेंगे, रोटी बना लेंगे, पराठा बना लेंगे, इवन एनीथिंग लाइक वी कैन। इवन लाइक बाहर जाके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है तुम्हारी खुद से, कि हाँ तुम्हें पता रहता है कि किस चीज में क्या, किस बंदे का आगे क्या डिसीजन लेना, क्या बोलना है, किस बंदे के साथ रहना, किस बंदे के साथ नहीं रहना। वो और बहुत सी फाइनेंसेस। चीजें। हाँ फाइनेंस एक सबसे बड़ी, यू या विल नो कि कहाँ से स्पेंड करना है, कहाँ से कहाँ क्या लेना है। वही है, खुद बहुत डेवलपमेंट हो जाती है। अच्छी बात है, जाओगे बाहर, कोई ऐसा नहीं है कि फंसी जाओगे, क्लियर नहीं होगा बाहर जाके, बाद में यहाँ पे इंडिया में आओगे तो कोई दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे से रिसर्च करके जाओ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे बातें करो, अच्छी एजेंसी से या फिर जो भी तुम्हारे जान पहचान से उनसे पता करो, खुद से रिसर्च करो, सबसे अच्छा है। ओके ओके। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सागर, my वेलकम। friend, my colleague, for sharing us your feelings and your strategy and giving us your time. बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत टाइम बाद बात हुई है हमारी। And for all the students, NEET UG aspirants, or anyone who wants to talk about like going abroad or anything, you can contact us. You can contact Dr. Sagar. You can contact me, and make sure to follow our channel, Dr. Dexter.
And Dr. Sagar's Instagram handle, I will put in the description box. You can follow him there. And thank you very much, Dr. Sagar. welcome. Thank you. Wow.